हेलो बच्चों, लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। तो हम ये पैसेज सॉल्व करेंगे। तो पहले पैसेज पढ़ लेते हैं। The self-reports of people with depression point to a deep and interesting connection with consciousness. To make sense of this idea, think about the effect of sleeping and dreaming on your mental life, or the experience of emerging from dreamless sleep into wakeful consciousness. In these transitions, our consciousness undergoes a profound structural shift. Consider, for example, how your experience of the passage of time when dreaming diverges from your experience of time when awake. We frequently experience days and weeks passing in a dream in the space of a few waking hours. Similarly, our sense of self and identity is highly malleable in the dream. We sometimes perceive ourselves as from the outside, looking down at our bodies, dream of being someone other than ourselves, or dream of being detached from a body altogether. Similar sorts of structural changes to conscious experience occur after taking psychedelics. So examples include the well documented phenomenon known as ego dissolution, the breakdown and loss of self in its entirety. Or the dramatic warping of space in the psychedelic state. In both dreams and psychedelic states, people report robust, wide ranging alterations that disturb and alter not only their sensory experiences but their conception of themselves and their connection to reality and other people. Neuroscientists and philosophers of consciousness have recently coined a new term, the global state of consciousness, to describe the structural properties of experience that varies between ordinary wakefulness and dreaming, the psychedelic state and the minimally conscious state. These states are called global because the whole of conscious experience is altered, not just a particular element. The fine detail of what we experience in everyday waking life changes all the time. Sounds, colors, odors, all come and go, but the structure stays largely fixed. I feel myself to be present in the world at the center of an integrated, coherent point of view. Time carries on flowing at the same rate. Space has the same geometric structure. The global state is this overarching structure and ordinarily stays constant. As particular experience pass us by, when we dream, take psychedelics, or suffer a brain injury, the structure can be altered and we enter a different global state. तो बेसिकली यहाँ पे क्या बताया गया है कि साइकेडेलिक लेने के बाद हमारा जो मतलब जो ब्रेन का स्टेट होता है, और मतलब जो व्हेन वी ड्रीम द स्टेट ऑफ आवर ब्रेन एंड आफ्टर टेकिंग साइकेडेलिक जो स्टेट होता है वो बहुत हद से सेम होता है। जैसे ड्रीम में मतलब अपना जो सेल्फ आइडेंटिटी है हम वो लूज कर देते हैं, मतलब कुछ अलग ही आ जाता है ना ड्रीम में, इट्स नॉट अटैच टू द रियलिटी, राइट? सो ड्रीम्स आर नॉट ऑलवेज अटैच टू द रियलिटी। तो साइकेडेलिक्स लेने के बाद भी वैसा हो जाता है कि जो वही फिर तुम्हारा जो थिंकिंग है, तुम्हारा जो अपना सेल्फ आइडेंटिटी है, सेल्फ कॉन्शियस है, वो काफी हद तक डिफर कर जाता है। एंड वो मतलब डिफर करते रहता है कि कभी तुम ऐसे सोच रहे हो, फिर दूसरे टाइम तुम कुछ और ही सोच रहे हो। तो दैट इज द व्हाट द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट, कि तुम साइकेडेलिक लेने के बाद तुम्हारा मेंटल स्टेट कैसा होता है, हाउ डज इट अफेक्ट योर सेल्फ आइडेंटिटी एंड हाउ इज इट सिमिलर टू ड्रीमिंग। तो वो बेसिकली ये बताता है। फिर लास्ट में ये बताया है वो कि जैसे मेरे लिए जैसे जो स्पेस है वो सेम है, जो मतलब जो स्पेस है उसका जो डायमेंशन है वो सेम है, टाइम सेम स्पीड पे चल रहा है, जो मतलब जो नॉर्मल इंसान के लिए होते हैं। बट जब हम सपने देखते हैं या फिर हम साइकेडेलिक लेते हैं और कोई ब्रेन इंजरी होता है, तो ये जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है डे टू डे लाइफ का ये ऑल्टर हो जाता है, और हम ऐसे एक डिफरेंट स्टेट में चले जाते हैं जहाँ पे हम कुछ और ही चीज अज्यूम करने लगते हैं अपने बारे में या फिर हमारे आसपास के बारे में। एंड ये साइकेडेलिक लेने के बाद ये जो एजम्पशन है ये भी चेंज होता है कि कभी कुछ ये सोच रहा है, कभी वो सोच रहा है, ऐसे। सो इट्स अबाउट व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेकिंग साइकेडेलिक्स लेने के बाद क्या क्या चेंजेस आते हैं एक पर्सन में, हाउ इज इट सिमिलर टू द स्टेट ऑफ ड्रीमिंग। ओके, तो यही ऑथर का बात है ऑल ओवर द पैसेज। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द क्वेश्चंस ऑफ दिस पैसेज। Based on the information presented in the passage, what would be the most effective course of action for inducing changes in global state of consciousness? देखते हैं। Practice lucid dreaming techniques to gain control over dream content. तो lucid dreaming टेक्निक से शायद ड्रीम कंटेंट पे तो कंट्रोल हो जाए, बट इसका मतलब नेसेसरीली ये तो नहीं है कि ये ग्लोबल स्टेट ऑफ कॉन्शियस में चेंज ले आए लूसिड ड्रीमिंग टेक्निक से। बी देखते हैं, ए तो सही नहीं लग रहा। बी देखते हैं, एंगेज इन सेंसरी
engage in sensory deprivation to reduce external stimuli. अब ये जो है ये तो सेंसरी एक्सपीरियंस में चेंज ले आ सकते हैं क्योंकि एंगेज इन सेंसरी डिप्रीवेशन, पर कि जरूरी नहीं है कि ये जो हमारे मतलब सेंसरी एक्सपीरियंस में तो ये चेंज ले आ सकते हैं, पर जो ग्लोबल स्टेट ऑफ कॉन्शियस है उस पे भी ये चेंज इंड्यूस कर पाए ऐसा तो कुछ जरूरी नहीं है, क्योंकि एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर है। हाँ, ये देखते हैं, कंज्यूम लार्ज क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल टू ऑल्टर कॉग्निटिव फंक्शन, दिस इज नॉट समथिंग विच इज लाइक सेफ और विच शुड बी डन, राइट? क्योंकि हमको यहाँ पे बोलना है कि मोस्ट इफेक्टिव कोर्स ऑफ एक्शन बताना है हमको, तो दिस इज नॉट समथिंग विच इज सेफ और एन इफेक्टिव वे टू ब्रिंग चेंजेस, तो इसको तो वैसे ही हटा देंगे। डी देखते हैं, participate in meditation retreat to induce altered state of consciousness. I think this is something which can be recommendable कि तुम मेडिटेशन से अपने खुद को मतलब इन थ्रू मेडिटेशन यू मे इंड्यूस ऑल्टर्ड स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस, बिकॉज meditation is like a control over your mind, right? Meditation say you can practice control over your mind by meditating, so that is something which can be said or which is something related to your consciousness as a whole, right? So I think this will be the correct answer for this question. क्योंकि देखो सी तो हम ऐसे ही हटा देंगे, सी इज नॉट समथिंग विच कैन बी लाइक सेड एंड इट इज नॉट अ रिकमेंडेबल कोर्स ऑफ एक्शन, और ई और बी जो है ये तो बता रहे हैं बट यू डोंट हैव एनी सपोर्ट टू से कि हाँ ये जो है ये ग्लोबल जो स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है उस पर कोई इंड्यूस चेंज इंड्यूस करे, है ना? क्योंकि वो हम नहीं बता सकते, इट्स लाइक अ पर्टिकुलर एक्शन जो मतलब जैसे कि लूसिड ड्रीमिंग टेक्निक्स है टू गेट कंट्रोल ओवर ड्रीम कंटेंट, इससे हम ये नहीं बता सकते कि ग्लोबल कॉन्शियसनेस पे चेंज है, बिकॉज दिस इज नॉट समथिंग विच इज related to your consciousness as a whole, but meditation is something which is a part of controlling your consciousness, like how you think, what you think, that is practiced through meditation, right? So that is what we will choose from here. So option D will be the correct answer for this question. Next question देखते हैं, based on the information presented in the passage, which of the following is the most reasonable assumption about the relationship between alterations in global state of consciousness and personal growth? तो ग्लोबल स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस और पर्सनल ग्रोथ के बारे में क्या रिलेशन है, इसके बारे में तो देखो हमें पैसेज में कुछ मेंशन नहीं था, जितना तक मुझे याद है वी डिडंट हैव एनी एक्सप्लिसिट थिंग मेंशन्ड अबाउट दिस इन द पैसेज, तो हम ऑप्शंस देखेंगे जो बेस्ट सूटेबल है हम वो चूज करेंगे। पर्सनल ग्रोथ कैन ओनली ऑकर इन इंडिविजुअल्स हु हैव एक्सपीरियंस्ड ऑल्टर्ड स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस, ये तो बहुत एक्सट्रीम चला गया, एक तो है कि पैसेज में कुछ दिया नहीं हुआ एक्सप्लिसिटली, और इतना एक्सट्रीम ऑप्शन तो हम चूज कर ही नहीं सकते, इसके लिए तो यू नीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग क्लेम और लाइक स्ट्रॉन्ग सोर्स फॉर दिस। द एक्सपीरियंस ऑफ ऑल्टर्ड स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस ऑलवेज लीड्स टू पर्सनल ग्रोथ, अगेन बहुत ज्यादा एब्सोल्यूट हो गया, बिकॉज ऑफ दिस ऑलवेज, बिकॉज ऑफ दिस ओनली, दिस आर लाइक वेरी मच एब्सोल्यूट इन इटसेल्फ, जबकि पैसेज में कोई स्ट्रॉन्ग क्लेम नहीं है। Personal growth may be facilitated by the experience of altered states of consciousness, but it is not guaranteed. And these will be the correct answer. C will surely be the correct answer, but still D हम देखेंगे. Personal growth is hindered by the experience of altered state of consciousness. Again ये extreme चला गया कि हिंडर होगा ही, क्योंकि देखो ये है कि हम हमारे पास कोई एक्सप्लिसिट इंफॉर्मेशन नहीं है, तो जब हमारे पास कोई एक्सप्लिसिट इंफॉर्मेशन स्टेटेड नहीं है वी कांट चूज एनी एब्सोल्यूट आंसर, और सी जो है दिस इज द बेस्ट सुटेबल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, बिकॉज इट इज अ बैलेंस्ड, इट इज सेड इन अ बैलेंस्ड वे कि हो सकता है फैसिलिटेट हो बट ये गारंटीड नहीं है, सो वी विल चूज सी। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन देखते हैं, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड इन द पैसेज, which of the following base describes the relationship between alterations of global state of consciousness and self? तो पैसेज में क्या बताया था, जो ये ग्लोबल स्टेट ऑफ कॉन्शियस में इतने ऑल्टरेशन होगा तो सेल्फ आइडेंटिटी लूज हो जाता है, कि तुम खुद को कभी कभी एज आउटसाइडर लुक करते हो, कभी कभी किसी और की तरह देखना चाहते हो, तो यू बेसिकली स्टार्ट लूजिंग योर सेल्फ आइडेंटिटी इफ योर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस ऑलवेज डिफर्स। अब देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस है। Alterations in global state of consciousness have no effect in individual sense of self, इसको तो ऐसे ही हटा सकते हैं, पैसेज से पूरा contradictory है। Alterations in global state of consciousness can lead to a loss of self identity. I think B will be correct, but C और D भी देखेंगे।
Alterations in global state of consciousness only impact one individual's sensory experiences, not their sense or self. No, ये भी पैसेज से contradictory है. Alterations in global state of consciousness enhance an individual's sense of self. नहीं, enhance तो करता ही नहीं है. ये तो मतलब तुम सेंस ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी चला जाता है, क्योंकि इतने सारे मतलब अलग अलग तुम्हारा वो इतना ज्यादा चेंज होता रहता है कॉन्शियसनेस, तो वो सेल्फ आइडेंटिटी लूज कर देती हो तुम. तो इनहांस तो होगा ही नहीं. तो बी विल बी द करेक्ट आंसर. If you go through the passage, you will also find this, like this, what is stated in B, you will directly find this. कि लॉस ऑफ आइडेंटिटी ऐसा तो कुछ था पैसेज में. हाँ, our sense of self and it is highly malleable in dream. We sometimes perceive ourselves of dream being detached. Maybe तो ये directly था mentioned. Okay, so now I'm unable to get the exact sentence, but once you go through the entire passage, you will surely find it. देखो, वैसे ये लाइन से भी तो हम बोल ही सकते हैं कि आवर सेंस ऑफ सेल्फ एंड आइडेंटिटी इज हाईली मेलिएबल इन ड्रीम. कि ये बहुत ज्यादा डिफर करते हैं और ये बहुत ज्यादा fluctuate करते हैं in our dreams. Sometimes we perceive ourselves from the outside, looking down at our bodies, dream of being someone other than ourselves. So ये ड्रीम के बारे में बताया गया है कि ड्रीम में ये हाईली मैलेबल है. और जो हमारा क्वेश्चन क्या था कि हाउ डज इट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन ऑल्टरेशंस इन ग्लोबल स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस एंड सेल्फ. हाँ, तो ये तो पैसेज में साफ से बताया गया है कि ड्रीम में होता है जो ग्लोबल स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस वो ऑल्टर होता है. और एक होता है कि साइकेडेलिक्स लो तो उसके बाद, या फिर कोई ब्रेन इंजरी हो. तो ड्रीम के बारे में जो दिया हुआ है वहां से तो हम इसको कंक्लूड कर ही सकते हैं कि लूज ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी होता है, लॉस ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी. तो ऑप्शन बी बिकम्स द करेक्ट आंसर. अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं. What is the main argument presented in the passage regarding alterations in global state of consciousness? Alterations in global state of consciousness only occur during dreams and psychedelic state. नहीं, ब्रेन इंजरी के बारे में भी बताया गया है साफ साफ, तो हटाएंगे. Alterations in global state of consciousness have no significant impact on individual sensory experiences. Contradictory. Alterations in global state of consciousness have a profound structural shift in an individual's consciousness. Obviously, this is the correct answer. Alterations in global state of consciousness are the result of brain injuries and other physical trauma. नहीं, ये ड्रीम में भी होता है और ये साइकेडेलिक लेने के कारण भी होता है. तो ये भी नहीं होगा. So sorry. So sorry for this marks. Please ignore it. The correct answer is option C. Fifth question देखते हैं, last question. Which of the following, if true, would weaken the argument that alterations in global state of consciousness are similar between dreams and psychedelic states? ठीक है, तो हमको weaken करना है कि ये जो ऑथर ने पूरा बताया था कि ये सिमिलर, मतलब जैसे ड्रीम्स में होता है वैसे साइकेडेलिक लेने के बाद होता है, तो इसको वीकन करना है. देखते हैं. ड्रीम्स टेंड टू बी मोर विविड एंड रियलिस्टिक देन साइकेडेलिक स्टेट्स. ठीक है. The loss of self in its entirety is a unique phenomenon only experienced in psychedelic states and not in dreams. The alterations in global state of consciousness in psychedelic states are often accompanied by physical sensations like dizziness, which are not present in dreams. Studies have shown that brain activity during dreaming and psychedelic states is completely different, suggesting that the two states are distinct. ओके, तो देखो ये जो ए बी सी है ये हमको डिफरेंसेस तो बता रहे हैं ए बी और सी में कि ड्रीम में और ये जो साइकेडेलिक स्टेट है इस मतलब दोनों में हमारा मेंटल स्टेट कैसे डिफर करता है, मेंटल कॉन्शियसनेस दोनों में क्या अलग अलग है. तो ए बी सी और हमको क्या करना था, हमको वीकेंड करना था इसी को. तो ठीक है, ये जो ए बी सी तीनों ऑप्शन में डिफरेंस तो बताया गया है, बट डी इज मच मोर फोर्सफुल. डी में जैसे बताया गया है कि दे आर कंप्लीटली डिफरेंट, स्टडीज ने बताया कि ये तो कंप्लीटली डिफरेंट है. सो डी इज द बेस्ट सुटेबल ऑप्शन, राइट. डिफरेंसेस यहाँ पे ए बी सी तीनों में बताया गया है, दैट इज ट्रू. ए में भी बताया गया है, बी में भी बताया गया है एंड सी में भी बताया गया है, बट डी इज द बेस्ट सुटेबल वन बिकॉज डी में पूरा फोर्सफुली और मतलब डी इज द मोस्ट इम्पैक्टफुल वन कि जो स्टडीज ने दिखाया कि ये कंप्लीटली डिफरेंट है. इसमें एक एक डिफरेंस बताया जा रहा है कि ये इससे ऐसे अलग है, ये ऐसे अलग है, बट डी सेज इट्स कंप्लीटली डिफरेंट. सो ऑब्वियसली डी इज द बेस्ट ऑप्शन विच वी कैन चूज. सो
D will be the correct answer for this question. I hope all of you have understood. We have completed this passage. Thank you.